Hello my dear students, welcome to the state class of physics A2. As you know that we are studying chapter of gravitational field. Previously we have done the concept of gravitational force and gravitational field strength. Now what was gravitational force? Gravitational force is given by the formula Gmm over r squared, where m is mass and r is distance between 2 point masses. And the formula of gravitational field strength is Gm over r squared. In this class, we will start with the new concept of gravitational potential, which is represented by symbol phi, and gravitational potential energy. Right? Somehow you are introduced with gravitational potential energy in O levels, and you know the formula. We will discuss that formula. So, this thing is very new for us. What is gravitational potential? I'll try to teach you this in very unconventional way. मैं आपको कुछ different examples दूंगा जिससे आप relate करके चीजों को याद रख सकें. Right? So याद रखिएगा for now, gravitational potential is also gravitational potential energy, but for 1 kg mass. I am repeating, gravitational potential is also gravitational potential energy, but for unit mass. Right? So firstly, we will discuss what is gravitational potential energy. आपके माइंड में शायद gravitational potential energy का फॉर्मूला आ रहा होगा. Potential energy is equal to mgh or mg delta h, right? But mg delta h is not the formula of gravitational potential energy at all. So, what was gravitational potential energy then? हमने तो पढ़ा है mg delta h, बच्चों that was the formula of change in gravitational potential energy, right? जो आपने previously formula पढ़ा था, that was the formula for change in gravitational potential energy, that is equal to mg delta h. ठीक है? So gravitational potential energy का formula कुछ और है. हम इसी क्लास में later on उस formula को study करेंगे, but mg delta h is the formula of change in gravitational potential energy. You know that this delta sign is used to represent change. Further, इस formula की एक और limitation है. इस फॉर्मूला को आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट, बिकॉज जी इस फॉर्मूला में कांस्टेंट है. जनरली ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में A1 में आप इस वाली वैल्यू को यूज करते थे 9.8 या 9.81. तो जी की वैल्यू 9.81 कहां पर होती है? ओनली एट द सरफेस ऑफ अर्थ. राइट? यू नो कि जब हम अर्थ से अवे जाएंगे इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी. G is proportional to 1 over r square. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये रिड्यूस होगी. हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ पहले से पढ़ रखा है. सो ये वाला फॉर्मूला आप प्रीवियसली इस वजह से यूज कर लेते थे बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशंस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट एंड दैट इज ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. मे बी फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और 2 मीटर और 10 मीटर्स और अप टू 1 किलोमीटर. ठीक है, इतने डिस्टेंस तक तो हम जी को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, बट फॉर मोर डिस्टेंस, फॉर लार्जर डिस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ जी विल रिड्यूस. सो पता ये चला कि mg delta h is the formula of change in gravitational potential energy, right? And it is only applicable where small g is constant. So what is the actual formula of potential energy? We will come to that formula, but understand this situation. You have earth, we are standing on earth. So let's place a certain mass at the surface of Earth. So this is a block placed at the surface of Earth, right? So let's assume this Earth has mass capital M and this small block has mass M, right? What will happen to the potential energy of this block once we will start rising this block? अगर हम इस block को vertically upward move करना start कर दें, what will happen to its gravitational potential energy in this direction? You all know कि height के साथ gravitational potential energy increase होती है, right? So in this direction, the value of gravitational potential energy will increase. ठीक है? So ऊपर वाली direction में gravitational potential energy, we all know कि height के साथ potential energy increase होती है. ठीक है, इसका बड़ा आसान सा टेस्ट है. एक स्टोन को लेस हाइट से ड्रॉप करें और एक स्टोन को ग्रेटर हाइट से ड्रॉप करें, किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा?
जब ग्राउंड पे गिरेंगे तो उस स्टोन का इम्पैक्ट ज्यादा होगा जिसको आपने ग्रेटर हाइट से ड्रॉप किया। वाई? बिकॉज वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा, उसके अंदर ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी और वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सो वी ऑल आर एग्रीड विद द पॉइंट दैट विद हाइट gravitational potential energy always increases. Now, एक ऑब्जेक्ट के पास, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. What is the reason behind having that potential energy? इसका मतलब ये है वो पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से है कि वो ग्राउंड पर वापस आ सकता है और विद सर्टेन इम्पैक्ट आ सकता है. इनफैक्ट उसकी सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ड्रॉपिंग विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपनी वजह से नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस कैलकुलेटर एंड इट इज एट सर्टेन हाइट. अगर मैं इस कैलकुलेटर को ड्रॉप करूंगा तो ये ग्राउंड पर आएगा. व्हाट इज द रीजन दिस इज कमिंग बैक? आइडेंटिफाई द रीजन. द रीजन बिहाइंड दैट इज द अर्थ. अर्थ हैज कैपेबिलिटी टू पुल इट बैक. ठीक है, तो हम सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? अर्थ कंट्रोल कर रही है. मैंने आपके सामने एक एग्जांपल प्लेस की है. एक बॉय इज फ्लाइंग अ काइट. ठीक है, जब तक काइट का थ्रेड इस पर्सन के पास है, बॉय के पास है, वो इसको अपनी मर्जी से मैन्यूवर कर सकता है. ठीक है, अगर आपके पास काइट फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि आप इसको हाइट पर भी लेके जा सकते हैं. ठीक है, आप इसको पुल भी कर सकते हैं, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मैन्यूवर कर सकते हैं. सो काइट इज फ्लाइंग, काइट इज एट सर्टेन हाइट, बट हु इज द कंट्रोलर? दिस बॉय इज अ कंट्रोलर. राइट? इस चीज को रिलेट करें. इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. इसको रिलेट करें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मेरे पास हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मेरे वजह से नहीं है. मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से है बिकॉज दिस अर्थ हैज अ कैपेबिलिटी टू पुल मी बैक. सो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ड्यू टू द स्मॉल मास, इट इज ड्यू टू द लार्जर मास, एंड द लार्जर मास इज अर्थ. हाँ, आपका कोई और प्लैनेट या कोई और लार्जर मास भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम अर्थ के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, समझना हमारे लिए आसान है. सो दिस ब्लॉक विल हैव पोटेंशियल एनर्जी which will increase with height. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की रीजन है this larger mass which is earth. ठीक है, मैं प्लेग्राउंड में जाता हूं, मैं जंप करता हूं और मैं कहता हूं कि आई विल जंप अप टू इन्फिनिटी. अर्थ कहती है जरा रुको, आप 1 मीटर तक जंप कर लोगे, रोनाल्डो की तरह 2 मीटर तक जंप करोगे, लेकिन ग्रेविटी ने आपको पुल बैक करना है. किस चीज की ग्रेविटी ने पुल बैक करना है? अर्थ की ग्रेविटी ने आपको पुल बैक करना है. इसी वजह से तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. राइट? सो ऊपर वाली डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, नो डाउट, लेकिन हम अर्थ को एस्केप नहीं कर सकते. देखें, अर्थ से लार्ज डिस्टेंस पे भी तो एयर प्रेजेंट है ना, एटमॉस्फेरिक एयर. तो क्या वो वैक्यूम में जा रही है? एयर नहीं, उस लास्ट मॉलिक्यूल पर भी अर्थ की ग्रिप है. ठीक है, अगर वो एयर वैक्यूम में जाना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? इस तरह तो सारी एयर लीक होना स्टार्ट हो जाएगी अर्थ से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक एयर भी रिड्यूस हो जाएगी और अर्थ की सारे जो आप कह लें वेरिएबल्स वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. अर्थ के अंदर जो चीज भी प्रेजेंट है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट अर्थ. सो जब आप हाइट पर जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी या इस मास की पोटेंशियल एनर्जी इसके अपनी वजह से नहीं है. इसका कंट्रोलिंग फैक्टर कौन है? द लार्जर मास व्हिच इज अर्थ इन दिस सिनेरियो. ठीक है, तो आप कहते हो कि ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एंड यू रीच अ सर्टेन पॉइंट, यू रीच अ लार्ज डिस्टेंस, और आप इंजॉय कर रहे हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की भी तो कोई लिमिट है ना. ठीक है, थ्योरेटिकली वी कॉल दैट पॉइंट इंफिनिटी. तो ये ब्लॉक इतना ऊपर गया कि ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर चला गया कि यहां से इसको अर्थ अट्रैक्ट बैक नहीं कर सकती. तो ये कितना ऊपर चला गया? ये यहां पर पहुंच गया. इट रीच दिस लार्ज हाइट जहां से अर्थ का इसको पुल बैक करना
बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो. इन फिजिक्स वी कॉल दिस पॉइंट इंफिनिटी. वी रेफर दिस पॉइंट इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी का सिंबल आएगा लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, ये मैथ्स ऊपर जा रहा था और इंजॉय कर रहा था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. यस, वी नो कि हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, लेकिन अर्थ, अब समझे, मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं. ऐसा होता तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं कि अर्थ उसको वार्न कर रही है कि भाई इतनी दूर ना जाओ. कहेगा मैं तो जाऊंगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अर्थ कह रही है कि अगर आप इतना दूर चले जाओगे तो आप मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओगे, फिर अर्थ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी टू पुल यू बैक. वाई? बिकॉज यू आर ब्रेकिंग दैट बैरियर. जहां तक अर्थ की ग्रेविटी है आप उससे भी बाहर जा रहे हो, एंड वी आर कॉलिंग दैट पॉइंट इंफिनिटी. ठीक है. सो इतने डिस्टेंस पे आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बच्चों, अभी ये इंफिनिटी पे है, इसका मतलब ये है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ चुका है. अर्थ की ग्रेविटेशनल पुलिंग स्ट्रेंथ से बाहर आ चुका है. अब अर्थ कह रही है कि भाई अब मैं तुम्हें पुल बैक नहीं कर सकती. ठीक है. तो ये परेशान हो गया कि अर्थ ने तो मुझे पुल बैक नहीं करना, मेरी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ही अर्थ की वजह से, लेकिन अब इस मैस को अर्थ ने डिसओन कर दिया, अब इसको पुल बैक नहीं कर सकती. सो वी विल कॉल दैट एट दिस लास्ट डिस्टेंस which is referred as infinity, the gravitational potential energy would be zero now. The gravitational potential energy of this block will be zero now. ठीक है. और क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होकर जीरो हुई है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज होकर जीरो हुई है, कोई भी चीज इंक्रीज होकर जीरो हो, वो पहले किस में होगी? वो पहले नेगेटिव में. ठीक है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फील्ड? ये ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? दिस फील्ड इज अट्रैक्टिव. ठीक है. तो याद रखना, इसका मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फील्ड में इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी वाज नेगेटिव. ठीक है. तो इस सारे सिनेरियो में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव. And I'm just telling you the formula of gravitational potential energy is minus gmm over r. याद रखिएगा, हर अट्रैक्टिव फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव. इनफैक्ट हर पोटेंशियल एनर्जी में, हर अट्रैक्टिव फील्ड में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, उसकी वैल्यू नेगेटिव ही हो. अब मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू सम मोर सिनेरियोज जिससे आपको क्लियर आइडिया होगा कि व्हाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. ठीक है. सो वी नो कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव इन अट्रैक्टिव फील्ड. फर्दर वी नो दैट एट एवरी पॉइंट potential energy is given by the formula minus gmm over r, and at infinity its value is zero, which is the maximum value of gravitational potential energy. Right? So one other way to understand why this potential energy is negative. So before that we will write the definition of gravitational potential energy. So you will write gravitational potential energy. Gravitational potential energy. ठीक है. अच्छा, इस डेफिनेशन को पहले मैं लिखूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा. देन यू हैव टू मेमोराइज दिस एग्जैक्ट डेफिनेशन बिकॉज दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ योर सिलेबस. राइट? तो आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at a point in gravitational field, gravitational potential energy at a point in gravitational field is work done to bring given mass from infinity
from infinity to that point. To that point. Which point? जिस पॉइंट पर आपने उस ऑब्जेक्ट की, उस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी. ठीक है. नाउ दिस डेफिनेशन इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको फिर आसान लगने लग जाएगी और फिर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएंगे. देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्क डन टू ब्रिंग गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी. तो बच्चों, कहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी से आ रहा है. लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से तो नहीं आता. हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट अर्थ की सरफेस है, इन्फिनिटी तो नहीं है. लेकिन साइंटिस्ट ने किस पॉइंट को रेफरेंस कंसिडर किया है? इन्फिनिटी. सो याद रखिएगा, द रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिटी. टू दैट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी. ठीक है. मैं आपको इस सिनेरियो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं और फिर आपको इसको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस अर्थ. Right, this is earth and this is a large distance which is referred as infinity. Right, so I am placing a dotted line here and this large distance is referred as infinity. तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि this point is large distance away which is infinity. What is the value of this? Is the reference point. Keep in mind कि साइंटिस्ट ने इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस करूंगा, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट हैज मास स्मॉल m. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट विच हैज मास स्मॉल m. अर्थ का मास इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल M. और आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पे, सो दैट इस पॉइंट P का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है दैट इज R. दिस डिस्टेंस इज रिफर्ड एज डिस्टेंस R. ठीक है. R इज नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, बट जो इस चैप्टर में डिस्टेंस है सिंबल R से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. सो दिस पॉइंट इज पॉइंट R. अच्छा, अब you know कि what is the nature of gravitational field? It is always attractive or repulsive or both. You know that this field is always attractive in nature. This field is attractive. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इस मास को जो कि इंफिनिटी पे प्लेस है, जो कि वापस नहीं आ सकता, एक अपॉर्चुनिटी दूं कि ये समहाउ फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो, so that earth has capability to pull it back. आपको ये पता है कि इंफिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज 0, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. और अब आपको ये भी पता है कि द नेचर ऑफ दिस फील्ड इज अट्रैक्टिव. तो आप मुझे ये बताइए कि ये मास अर्थ की तरफ खुद आएगा या इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी. देखिए, अगर एक रिपल्सिव फील्ड है, सो उस केस में you have to do some external force has to do work against friction. For example, आपके पास दो मैग्नेट्स हैं और उनका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल फेसिंग है. अगर आपने नॉर्थ पोल्स को टच करना है तो पहले मुझे ये बताइए कि उनके दरमियान फोर्स की नेचर क्या है. You will tell that the nature of force between the north and north is repulsive. तो आपको उस repulsive force के against वर्क करना है. So work is done by you. Work is done by the external force. But when the field is attractive, ऑब्जेक्ट खुद अट्रैक्ट होता है, ऑब्जेक्ट खुद मूव करता है. ठीक है. तो इस केस में वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट, नॉट बाय द एक्सटर्नल फोर्स. भाई अट्रैक्टिव फील्ड है, ऑब्जेक्ट खुद जाने को तैयार है, तो फिर क्या जरूरत है एक्सटर्नल फोर्स की. ठीक है. तो जब ये मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा टूवर्ड्स पॉइंट P, जिस पॉइंट पर आपने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आप मुझे बताएंगे वर्क इज डन on the mass by external force या work is done by the mass. Work is done by the mass. So you will write in this direction, जिस direction में मैंने arrow बनाया है towards left, work is done
बाय द मास, तो फिर वर्क करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, तो डेफिनेटली इट हैज एनर्जी और ये अपनी एनर्जी कंज्यूम करके यहां पर आएगा. सो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं थी. कौन सी एनर्जी थी? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे जीरो थी और वो मैक्सिमम वैल्यू थी. ठीक है. सो वर्क इज डन बाय द मास ऑन एक्सपेंस ऑफ, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करेगा? ऑन एक्सपेंस ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ईपी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो एक एनर्जी जब प्रीवियसली जीरो थी, जो कि डेफिनेटली मैंने आपको बताया उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो उस जीरो से एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगी. सो व्हाट विल हैपन? जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी जीरो है और वो यूज अप होगी टू डू वर्क बाय द मास. देखें, मैं आपको सिनेरियो को एक्सप्लेन करता हूं कि डेफिनेशन में हमने जनरल सिचुएशन लिखी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज वर्क डन टू ब्रिंग गिवन मास. यहां पर सिर्फ ये लिखा है वर्क डन. ठीक है. स्पेसिफाई नहीं किया कि वर्क डन ऑन द मास है या वर्क डन बाय द मास है. नाउ यू नो दैट वर्क इज डन बाय द मास ऑन एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी. तो जब ऑलरेडी इनिशियली इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और वहां से एनर्जी कंज्यूम होगी, व्हाट विल हैपन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी? डेफिनेटली इट विल बिकम नेगेटिव. ठीक है. तो इस एरो की डायरेक्शन में व्हाट इज हैपनिंग टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी? यू ऑल नो दैट इन दिस डायरेक्शन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. और हमने पहले भी डिसाइड किया था, जब अर्थ से अवे जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब टूवर्ड्स अर्थ जाएंगे, जैसा कि इस केस में जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल decrease. So, if the potential energy is decreasing from zero, definitely its value will be negative. So, at this point P, what will be the value of potential energy? At this point, the expression of potential energy will be minus G M M over R. Right? So, you have to memorize this formula, minus G M M over R. So, what was MGH? उसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे और पहले आपको बता भी चुका हूं, दैट वाज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. राइट. सो नाउ यू नो दैट दिस इज माइनस GMM ओवर आर. मैंने दो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दिया. ठीक है. शुरू में मैंने आपको यह बताया था कि अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और इन्फिनिटी पे जीरो है तो विद इन द फील्ड नेगेटिव होगी. और अब यहां पर मैंने आपको एक और मेथड से एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे आप अर्थ के करीब आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जीरो से रिड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव. याद रखिएगा, इन्फिनिटी पे फिर ये वैल्यू जीरो होती है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज इट इज एनर्जी, इट्स यूनिट विल बी joules, represented by symbol capital G. Right. Up next we will write the definition of gravitational potential और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. So now you will write heading gravitational potential. Gravitational potential. ठीक है. The symbol of gravitational potential is phi. मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, बट फॉर यूनिट मास, फॉर 1 kg मास. ठीक है. तो हमने यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही हेडिंग लिखनी है, बट वी विल कॉल के ये 1 kg मास के लिए, यूनिट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी है. सो यू विल राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in gravitational field, gravitational potential at a point in gravitational field is work done to bring, जी स्टूडेंट्स यहां पर कौन सा मैस आएगा? यहां पर यूनिट मैस आएगा. टू ब्रिंग यूनिट मैस
from infinity to that point. कौन सा पॉइंट? डेफिनेटली वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करना है. सो इसका मतलब यही है कि जैसा कि हम प्रीवियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में पढ़ चुके हैं, सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, बट फॉर 1 kg मास इसके केस में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस साइन से स्टार्ट होगा. याद रखिएगा, हर अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव. सो इफ दिस इज अर्थ और आप इस अर्थ के रिस्पेक्ट से इसकी सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, such that the distance from the center of earth to the surface of earth is r. The formula of gravitational potential is minus gm over r. ठीक है, you have to memorize this formula as well. याद रहे कि इस फॉर्मूला की डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इस वजह से हम इसकी डेरिवेशन की डिटेल में भी नहीं जा रहे. ठीक है, सो मैंने आपको यही बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, बट फॉर स्पेसिफिक मास. व्हाट वाज दैट स्पेसिफिक मास? फॉर 1 kg मास या फॉर यूनिट मास. तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज कैसे प्रूव करेंगे? आप लिखेंगे माइनस जी एम एम ओवर आर. फर्दर आप लिखेंगे जी एम और स्मॉल m will be 1 kg over r. Your formula will be minus gm over r. So what is the SI unit of gravitational potential? Because it is energy per unit mass, तो आप लिखेंगे it is joules per kg. Joules per kg. ठीक है. अच्छा, once again you have this reference point which is earth. This is the center of earth and this is the surface of earth. जहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस डिस्टेंस बाय डिस्टेंस r. इस केस में यस, r इज रेडियस ऑफ अर्थ. तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर. इसकी वैल्यू नेगेटिव में है और सरफेस ऑफ अर्थ वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मिनिमम है. जब आप स्पेस में जाएंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज. तो मिनिमम डिस्टेंस है, इसका मतलब है r, विच इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, सो इसकी वैल्यू मैक्सिमम विद नेगेटिव साइन आएगी. सो लेट्स स्केच इट्स ग्राफ. राइट, सो लेट्स टेक द अर्थ सेंटर एज अ रेफरेंस पॉइंट एंड आई विल ड्रॉ फ्यू लाइन्स. दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ. This is your x-axis, right? So the quantity along y-axis is gravitational potential in joules per kg and the quantity along x-axis is distance r in meters. R लिख लें, d लिख लें, it's the same thing, right? So up to this point we are standing at the surface of earth. जो distance है that is equal to the radius of earth. सो मैं यहां पर इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा विद सिंबल r, वेयर r इज द रेडियस. ठीक है, इस पॉइंट पर याद रखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर नेगेटिव. तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू -5, वेयर इट हैज इट्स मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, जिसको हम कहेंगे इस वक्त पोटेंशियल जो है वो मिनिमम. ठीक है, तो जो पोटेंशियल का पॉइंट होगा दैट विल बी प्लॉटेड हियर. ठीक है, वंस वी रीच एट द हाइट व्हिच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी r प्लस r. सेंटर डिस्टेंस से लेकर सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस विल बी 2r. सो एट दिस डिस्टेंस डिनोमिनेटर का क्या होगा? डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा. राइट, इस पॉइंट पर डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा. So we are standing at a point where distance from the center of earth is 2r. Right? You know the formula of potential. Gravitational potential is equal to minus gm over r.
तो बच्चों जब डिनोमिनेटर डबल होगा तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा. सो एट दिस डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी -0.55. ठीक है, -0.55 का पॉइंट यहां पर प्लेस होगा. सिमिलरली 3r पर डिस्टेंस पे वैल्यू 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी. एट डिस्टेंस ऑफ 3r दिस वैल्यू इज -0.335. -0.335 point will be plotted here. And at a distance, एक और कर लेते हैं, at distance of 4r this value will further increase. नेगेटिव में जब वैल्यू लेस हो रही होती है तो इंक्रीज हो रही होती है. वैसे भी y एक्सिस में जब आप ऊपर आते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं. दिस वैल्यू विल बी -0.255. So I will place a point here. ठीक है, तो अब आपको इन सारे के सारे पॉइंट्स को, इन 4 पॉइंट्स को 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्मूथ कर्व. ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है. Like this. So this is a graph of gravitational potential with respect to distance from the center of earth. और आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू रिड्यूस हो रही है और एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है. इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को मीट करेगी. Right now it is asymptote with x axis, but at a large distance this value will approach to 0, and in physics we refer that large distance as infinity. Right? So this is the variation of gravitational potential at the surface of Earth. So we have these two formulas. Once again I'm writing that the formula of gravitational potential is minus gm over r, और gravitational potential energy is, देखिए phi is gravitational potential for unit mass, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गिवन मास की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. जस्ट हैव टू multiply it with the given mass small m, which can be further written as minus g m over r multiplied by small m, and this formula is minus g m m over r. Further we got to know that this value will be negative. So for example, आपने दो different positions में एक object की change in gravitational potential energy निकालनी, change in gravitational potential energy find करनी है, लेकिन आपके पास तो potential का ग्राफ है. तो अगर आपके पास पोटेंशियल का ग्राफ है तो आप y एक्सिस से चेंज इन पोटेंशियल देखिए और उसको गिवन मास से मल्टीप्लाई कर दें. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय गिवन मास स्मॉल m. राइट, इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और कंसोलिडेट होगा. राइट, दिस इज नॉट इनफ फॉर enough information to understand gravitational potential and gravitational potential energy. There's a lot more. ठीक है, so in the next video we will understand how the potential varies, what is escape velocity, how you calculate energies of satellite which include kinetic energy, potential energy, total energy, and much more. So I'm looking forward to seeing you in the next video. Do subscribe Slate. Thank you.